Good morning, students. We are going to start or continue the chapter Resources and Development. Yesterday we studied about what is resources, and these resources can be classified in the following ways. So on the basis of origin we discuss biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility we discuss about what is renewable resources and non-renewable resources. On the basis of ownership we discussed about individual, community, national and international ownership. And the fourth is on the basis of status of development. We continue on the basis of the status of development. First, potential resources. Potential resources which are found in a region but have not been utilized. For example, potential resources means we have resources but have not been utilized. हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं. For example, the western parts of India, particularly western parts means Rajasthan, Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy. But so far these have not been developed properly. Western part of India is Gujarat, Rajasthan. इसमें पोटेंशियल एनर्जीज बहुत है, पोटेंशियल रिसोर्सेज बहुत है. हम वहाँ विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी डेवलप कर सकते हैं. बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी कांट डेवलप इट, वी कांट यूज़ द रिसोर्सेज. दिस इज़ पोटेंशियल. वहाँ पे बहुत सारी हम वहाँ सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें. बट टेक्नोलॉजीज़ बहुत कम है, इसके कारण हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, विंड एनर्जी का, सोलार एनर्जी का. इसीलिए हम इसे पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. सेकंड, डेवलप्ड रिसोर्सेज और डेवलप्ड स्टॉक. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. Resources which are surveyed, हमने जो डेवलप रिसोर्सेज हैं उनको हमने सर्वे किया है, उनकी क्वांटिटी को, उनकी क्वालिटी कैसी है डिटरमाइन किया है कि हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, कम है, क्वालिटी कैसी है, द डेवलपमेंट. और ये सारे डिपेंड्स करते हैं आपकी टेक्नोलॉजीज़ में. दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन आवर गुड टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं इन ईजी वे में या नहीं. स्टॉक्स हैं हमारे पास, बट टेक्नोलॉजी से ही हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटीज़. स्टॉक्स और रिजर्व. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess these, are included among stock. We have developed resources, developed stock. For example, let's take example. Water is compound of two gases. अगर हम डेवलप स्टॉक की बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज और काफ़ी मात्रा में स्टॉक है. वाटर जो टू एलिमेंट से बना हुआ है, टू कंपाउंड, टू गैसेस से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. हमें पता है हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डोंट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, नो हाउ टू यूज़ फॉर इट्स पर्पस. हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वी डोंट यूज़ दी स्टॉक और डेवलप्ड रिसोर्सेज एज अ रिसोर्सेज. एंड द लास्ट इज रिजर्व्स. Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. Like for example,
जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स मतलब रिजर्व में उस चीज़ को संभाल के रखना फॉर फ्यूचर यूजेस। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स की मीटिंग के लिए हम उन्हें रिजर्व कर रख रहे हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीन यूज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हमें पता है कि रिवर वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट प्रेजेंटली हम उसे डैम में सेव कर रख रहे हैं और एक्सटेंट स्मॉल यूज़ उसका कर रहे हैं। द वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट, इन सबको हम रिजर्व कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर यूज। लेट्स start a new topic, development of resources. Development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Resources maintain the quality of life of human beings. It was believed that resources are the free gifts of nature. ये बिलीव करते हैं हम कि जितने भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, हमें हमारे एनवायरनमेंट ने दिया है। एज अ रिज़ल्ट जब भी हमें कोई चीज़ फ्री की मिलती है हम उसका इस्तेमाल फ्री की तरह ही करते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हमारे रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वेस्ट किए जा रहे हैं। इसके कारण हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम्स, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लालची फ्यू इंडिविजुअल्स पर्सनस के कारण हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हमारे रिसोर्सेज को बिल्कुल डिप्लीट करते जा रहे हैं। दे आर डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। कुछ रिसोर्सेज फ्यू हैंड्स में ही है, जो रिच पर्सनस हैं उन्हीं के पास वही वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव एंड हैव नॉट, रिच और। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज सिर्फ रिच पर्सनस के पास हैं और कुछ रिसोर्सेज बिल्कुल कम रिसोर्सेज पुअर लोगों के पास है। इस एक्युमुलेशन के कारण, एक्युमुलेट्स के कारण डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, टू सेगमेंट्स में पर्सनस भी, ह्यूमन बीइंग्स भी डिवाइड्स हो रहे हैं। वन रिच पर्सन, वन पुअर पर्सन। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as indiscriminate लगातार इस्तेमाल के कारण एक्सप्लॉइट्स हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और इसके कारण हमें ग्लोबल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी पड़ रही है। ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती जा रही है जो हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचा के रखती थी। एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बिल्कुल पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का लैंड बिल्कुल डिग्रेड होती जा रही है, जिसमें फर्टिलिटी रहती थी वो बिल्कुल डिग्रेडेशन पर आ चुकी है, वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ करती जा रही है because we are using fertilizers, pesticides, and equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. अगर हम equitable distribute करेंगे अपने resources को, then quality of life और global peace always maintained रहेगी। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. If depletion of resources continues by a few individuals or by a rich persons, the country continues, the future of our planet is in danger. Therefore resource planning is
very essential for saving our resources. So, sustainable existence is a component of sustainable development. What is sustainable development? First, understand what is sustainable development. Sustainable development means sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, without depletion of resources, exploitation of resources should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Sustainable development means development should take place without damaging or depletion of resources, and development should not compromise with the new needs of our future generation. ऐसी डेवलपमेंट जिसमें आप डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस ना हो, हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और रिसोर्सेस को रिजर्व करके यूज़ करें, सेव करें और हमारे फ्यूचर नीड्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे हमें संभाल के रखें. Resources planning is very important for all this. Next topic is resources planning. Resources planning. Planning is very important part in our life. For every exam, we plan what to read, how to read, how many hours to read. Resources planning. Planning is a widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India. Planning is very important like country in India, which has enormous diversity in the availability of resources. In India, there is enormous diversity. Religions, caste, minerals. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. Some regions, कुछ regions है जैसे छोटा नागपुर plateau is the region. It is rich of minerals, ores, and some regions that are deficient in some other resources. Some are rich for coal, some are rich for iron, gold, and some are rich for cobalt, mica. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. कुछ रीजन्स है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और कुछ रीजन्स में डाइवर्सिटी होने के कारण कुछ रीजन्स में हमें वाइटल जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं या इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो तक अवेलेबल नहीं हो पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. So, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh has abundance, are rich in minerals and coal deposits, but Arunachal Pradesh is rich in water resources but lack of infrastructural technological things, infrastructural development. We are not using proper of water resources. The state of Rajasthan is very well endowed with solar. We read about potential resources. Western state Rajasthan and Gujarat, solar energy and wind energy, but the lack of technological system, but the lack of technology, we can't use the solar energy and wind energy. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. There are
lack in water resources, but the cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. Cold desert, छोटा तिब्बत, लद्दाख इज़ रिलेटिवली उसे एक आइसोलेट कर दिया गया है पूरी कंट्री से. इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, वो बहुत ही रिच है अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, वहाँ डेफिशिएंट इन वाटर, कमी है वाटर की. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है, एंड सम वाइटल मिनरल्स की भी बहुत कमी है. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. This called a balanced planning. Means कि कुछ states में कुछ minerals हैं and कुछ states में वो minerals हैं but हम infrastructural development के कारण we can't use. Diversities होने के कारण कुछ minerals हर जगह developed हैं, मिल रहे हैं, rich हैं, बट हम कहते हैं वहाँ डेफिशिएंट है. मींस कि यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में बहुत कम मिनरल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गुड नहीं है, टेक्नोलॉजी भी गुड नहीं, बट देयर आर कल्चरल हेरिटेज वेयर दे वेरी रिच इन कल्चरल हेरिटेज. दिस कॉल्ड अ बैलेंस प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल्स. Resources planning in India is very much important. First point is complex process which involves, first point, identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. फर्स्ट प्लानिंग हमें जो करनी है इंडिया में हमारे रिसोर्सेज को लेके एंड मिनरल, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा नागपुर इज़ वेरी मच रिच इन मिनरल्स. हमें वहाँ देखना है कितनी क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इज़ अवेलेबल देयर, व्हाट क्वांटिटी, एंड सर्विंग फर्स्ट हमें वह उस रीजन्स में जाके पता करना होगा कि किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में. इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा कि हाँ वो गुड क्वालिटी का है कि नहीं, उसे हम रिज़र्व कर सकते हैं कि नहीं, उसे कितने सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं. ये हमें प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा ये एस्टिमेशन करना होगा. सेकेंड, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, skill and institutional setup for implementing resources development plan. हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रिसोर्सेज डेवलप प्लान्स का सेटअप करना पड़ेगा, उन टेक्नोलॉजी, गुड टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है, किस टेक्नोलॉजी को कहाँ यूज़ करना है. मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान या रिसोर्स प्लानिंग को हमें अपने कंट्रीज डेवलपमेंट प्लान से मैच करना होगा जिससे हमारी कंट्री डेवलप करे. डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. India has made concentrated efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plans launched after independence. After independence, India launched 5 years plans for resource and development planning for development of India. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but made availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. In this paragraph, availability of resources in some regions which have poor resources but they are economically developed means availability of resources, कुछ resources कुछ रीजन्स में अवेलेबल हैं तो
वो डेवलप्ड हैं, दैट एरिया इज़ वेरी मच डेवलप्ड, दैट स्टेट इज़ वेरी मच डेवलप्ड, दैट सिटी इज़ वेरी मच, दैट रीजन इज़ वेरी मच डेवलप्ड. बट वी कांट से डैट जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज कम है, तो वो डेवलप्ड नहीं है. दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. वहाँ ट्रेड बिजनेस हो सकते हैं, उन्होंने अपने को इकोनॉमिकली ट्रेड बिजनेस से डेवलप करके रखा हुआ है. अगर हम पास में जाए ब्रिटिशर्स में, तो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने बहुत सारा, मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया. हमारे रिसोर्सेज के कारण ही दे कम इंडिया, वो हमारे इंडिया में आए फॉर यूजिंग रिसोर्सेज. उन्होंने काफ़ी रिसोर्सेज यूज़ किए, यहाँ से वो रिसोर्सेज यूज़ करते थे. एंड फॉर गुड टेक्नोलॉजीज़ दे यूजेस दी गुड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके उन्होंने रिसोर्सेज को बहुत यूज़ किया और उन्होंने डेवलप भी किया, अपनी कंट्रीज़ को डेवलप किया. एंड नॉट मच बट लिटिल बिट इंडिया को भी थोड़ा बहुत डेवलप किया. Conservation of resources is very much important vital part of our resource planning. But irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. Conservation of resources is very important part of resources planning. Gandhi ji said, one important point Gandhi ji said about resources, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. हमें रिसोर्सेज का यूज़ डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, बट किसी की ग्रीडीनेस के लिए नहीं करना चाहिए. किसी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए यू कैन यूज़ द रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, बट किसी की ग्रीड के लिए आप यूज़ कर रहे हो, उस रिसोर्सेज के डिप्लेशंस कर रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड. सो कंजर्व आवर रिसोर्सेज and develop our country. For future purpose we have to conserve our natural resources. And he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि वेन एवर मास प्रोडक्शन को ज़्यादा होता है तो हम कुछ लिमिट के बाद उस मास प्रोडक्शन में स्टॉप कर जाते. अगर मैंने कुछ प्रोडक्शन किया, हमने किसी चीज़ का लाइक एग्जांपल चॉक का प्रोडक्शन इतना कर दिया, अब स्कूल लाइक पेंडेमिक इस कोविड-19 वायरस के कारण स्कूल सब क्लोज्ड है और हमें ऑनलाइन टीचिंग्स, वी आर डूइंग ऑनलाइन टीचिंग्स करनी पड़ रही है. तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ चॉक इन होम? हमें पता है हमारे घर में ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ चॉक? वी आर वेस्टिंग द थिंग्स. So conserve the things, conserve the resources for the development of our country.